Hello there, and welcome once again to Whips and Chains, the place where we have a lot of interesting and authentic conversations with people who are willing to own all of their past and talk about how they have used the lessons in the past and the learnings in the past to create a beautiful, eventful, and exciting present. So today, my guest is Indraneel Roy. Hi, Indraneel. I'm very happy to meet you because he is very interesting person because he has many more sides to him than just being part of the community. And I'm here to discover all the different sides he has to his exciting life. So thanks for being with me, Indraneel. Thank you And so much for inviting me. yes, and we're going to start with the obvious question that I've been wanting to ask you from the time I spoke to you कि ये accent कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये आप एक अकेली शख्स नहीं हैं। ये सवाल सबके ज़हन में आता है। टीनेज क्रॉस करने के बाद हम जिससे जहाँ जभी भी मिले इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी सब लोग सेम सवाल पूछते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं हमेशा इंडिया में ही रहा, दिल्ली में पला-बड़ा। द Now थिंग go इज़ कि back to the accent, Oh, please. yes. So when I was growing up, I wouldn't speak a single word in English. I was very hesitant, although I went to a school which is very much teaching in English. And at home, I used to look up to my sister and my father, and they would always talk in English among themselves, and which were quite good. Having said that, my sister, when she was growing up, she went to a convent school in Calcutta. Probably that helped her with the language, and I always felt left out. Mhm. And in my mind, I was like, the F word, like it's only a language. Why can't I pick it up? What's what's the Stopping big me. deal? Oh. And I took it upon myself and I started watching a lot of BBC, a lot of it. Evidently. Indeed. Right. So interestingly, people from the UK when they meet me, they were like, "Oh, you've got a formal sort of an accent, which is pretty old fashioned." I was like, "Yes, because I've never lived in London. It's only the TV." And also to get hold of language, I started reading a lot of newspapers. Right, right. Uh, So every day I used to read a lot of newspapers, and I started reading a lot of different authors as well at a very young age, and that had really helped me. And that's excellent. So, what you're saying is that not only the visual medium where you heard people speaking, even the written word yes, really inspired you at a young age to upgrade yourself. absolutely, है ना? absolutely. And And also, in today's, I would like to cut you short a little bit of that. In today's time and age, the kind of English, or as a matter of fact, Hindi or Bangla or Punjabi, people in the new age, the language that they use in their daily life, it's not correct. It's yeah, very improper. It's not formal, and it really lacks finesse. the finesse of the language, which is very Yes. important. So if you read, and we were encouraged to read by my grandfather. He was an avid reader, and he was a playwright, Right. and I think it lingers in the family. So I'm fortunate that I was able to pick it up from my family, and that really helped a lot. Right. But talking about family, we're going to come back to language later, but talking about family and childhood and early childhood, you grew up in Kolkata in Briefly, briefly, yeah, but you had one of those large rambling houses, the yes, kind that they show on TV. kind of, Yeah. yes, almost. So, what were the first impressions growing up in a huge house like that? So Um, I would like to correct you a little. So that's not the complete story. My house is a basic middle class family, which will have. This is my mum's house. This is my maternal family house, which is very close to my own house in Calcutta. And every weekend we used to spend a couple of days over there. But after I think I was 3 and 4 year old, I was getting more attached and attracted to that house. I think the field of old era always stayed with me. Maybe some past life connection. तो मेरे कज़न्स मोस्टली काफ़ी उम्र दराज हैं मुझसे और वो लोग मैं जब पैदा हुआ वो तभी कॉलेज में थे
तो मोस्टली वो कॉलेज से आते जाते थे और सिटी से, मेन टाउन से जब आते थे तो दोपहर को मुझे भी अपने साथ ले जाते थे। अब अगला हफ्ता 2 हफ्ता मैं नर्सरी में था तो स्कूल जाने की उतनी दिक्कत नहीं थी, तो उसी घर में बड़ा अच्छा समय गुजरता था। तो यहाँ पे बैठक खाना, जहाँ पे मतलब हज़ारों किताबें थी, आप पढ़ सकते हैं। साथ में हमारा तालाब, जहाँ पे आप फ़िशिंग कर सकते हैं। उस ज़माने में कलकत्ता में बंद बहुत होता था, तो अगर बाज़ार में मछली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने तालाब अपने से। तालाब से फ़िश खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। तो बड़ा मज़ा आता था। और या हमारे घर में एक अक्षय तृतीया, एक इट्स इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डेट इन हिंदुइज्म। यस। उस दिन हमारे घर के मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट डे है वो। तो बहुत बड़ा उत्सव होता है, करीब 4-5 हज़ार लोग आते हैं। अ, मतलब वो एक देखने लायक समय। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बीन That kind of, born in yeah, that kind of a yes, family which really teaches you a lot. yes, yes. एक कल्चरल एस्पेक्ट भी है। फूड, आई एम अ बिग फूडी, तो वो भी फैमिली से ही आया है। तो there's a Right. lot, yeah. Right. So from that kind of rich heritage steeped in, the old world era and the charm of, the feudal old fashioned families with mandir and talab and all of Joint that, family joint family, you moved with your father to Delhi. to Delhi. So what was the transition like? What did you absorb suddenly as a shock to the कल्चरल system? शॉक था, Huh. ऑलमोस्ट अ फॉरेन लैंड। Huh. एक भाषा जो हम बोलते नहीं हैं, समझते हैं क्योंकि एक 6 साल का बच्चा बॉलीवुड मूवीज़ काफ़ी देखता है तो उसको समझ तो आता ही है। Hmm. कलकत्ता में, नॉर्थ इंडिया, वहाँ पे हम ये नहीं कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग, इट्स इट्स वेरी रेसिस्ट, बंगाली लोग बहुत रेसिस्ट होते हैं। तो हम कहते हैं कि हम बंगाली हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। वो आई बिलीव कि वो भी अब भी बरकरार है। हाँ, कलकत्ता में एविडेंट है, हाँ, दिखता है, मगर यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। इट्स हाँ, इट्स अ टर्म। या, तो हमें आके लगा कि यहाँ तो सब यही लोग हैं, अब पता we नहीं have to क्या live क्या among the, होगा। मगर हाँ, इंटरेस्टिंगली जब हम दिल्ली आए तो हम साउथ दिल्ली में पले बड़े हमेशा से, और सरदारों के साथ पले बड़े। तो दुर्गा पूजा से सीधा हम चले गए गुरुद्वारे। गुरपूरब के जुलूस में, ट्रकों के पीछे बैठ के और झंडे फहरा के, पगड़ी पहन के। तो हमारा बचपन तो ऐसा ही काफ़ी मल्टी कल्चरल, काफ़ी डाइवर्स एक बचपन And हमने also गुजारा। you said that you also learned how to study यस, एब्सोल्युटली। in Punjabi हाँ, and हाँ, read Gurmukhi and all of that. इंडीड। अभी तो हमें पढ़ना नहीं आता अच्छी तरह से, मगर साइन बोर्ड्स पढ़ सकते हैं, और फ्लुएंट है हाँ, मेरी काफ़ी पंजाबी, काफ़ी हद तक। तो एक कुछ कमाल की चीज बताइए पंजाबी में, to say it with that whole feel of it. Say one thing that you could say like that in Punjabi and then say it in Bangla so that we know the contrast that you carry within you. सो आई वुड से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे घर आ जाइए। अब ये बांग्ला में बोलेंगे कि অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই, তুমি সোজা বাড়ি চলে এসো। और हम पंजाबी में बोलेंगे कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ आ जाओ। So you've got the accent quite bang on, right? यस, यस। तो Okay. लिखना पढ़ना होता था तो लिटरेचर में बचपन से ही काफ़ी दिलचस्पी थी हमारी। तो पंजाबी लिटरेचर बहुत रिच है। आजकल पॉपुलर कल्चर में पंजाबी म्यूज़िक को और पंजाबियों को जैसे दिखाया जाता है, इट्स नॉट क्वाइट राइट, काफ़ी मुख्तलिफ है। एंड आई बिलीव वेस्ट पंजाब में अभी भी वो एक जो कल्चरल हेरिटेज है उसको काफ़ी हद तक बरकरार रखा गया है, जो पाकिस्तान है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जिस तरीके का पंजाबी म्यूज़िक हमें सुनने को मिलता है, वो बात नहीं है। Hmm. So when you're talking about your childhood and growing up in Delhi in such a, multicultural sort of atmosphere where you obviously absorbed a lot, what was your schooling and your ecosystem with your friends? What was that all सो like? दिल्ली आने के तुरंत बाद हम जिस प्राइमरी स्कूल में जाते थे, वो पंजाबी डोमिनेटेड है, तो गुरमुखी जो है लिखना पढ़ना वहीं से सीखा।
एंड वो पूरा पंजाबी इन्फ्लुएंस। उसके बाद चौथी कक्षा से, क्लास 4 से हमें हमारे पापा ने जो है, बाबा, उन्होंने कम्युनिटी स्कूल में डाला, रायसीना, जो एक हेरिटेज स्कूल है, जो बंगाल से जब ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली आ गए थे, जब पार्लियामेंट बना और जब राष्ट्रपति भवन बना इन अर्ली 1900s, हमारा स्कूल तब से है फॉर बंगालीज। तो अगर आपके माँ बाप में से दोनों एक बंगाली हैं तो आपको एडमिशन मिल सकता है। मगर फिर भी बंगाली कल्चर एंड बंगाली लिटरेचर, ये जो पूरा हेरिटेज है, वो दिल्ली में रह के वो मेरे लिए तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि वो एक अंदर से एक था कि ये मेरा है एंड आई एम वेरी प्राउड बंगाली, तो मुझे ये सीखना है। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं उन, नो ऑफेंस, मगर दिल्ली में ज़्यादातर बंगाली जो है उनकी बंगाली कुछ अच्छी नहीं है। सेम गोज विद पंजाबी। जो यूपी वाले हैं वो दिल्ली में सेटल्ड है, उनकी हिंदी भी अच्छी नहीं है। तो नो ऑफेंस। No, but you also have a lot of Urdu nuances in your उर्दू Hindi. नुआंसेस ये बचपन से नहीं है, ये लेट टीन्स के बाद, क्योंकि मौसीकी का बहुत शौक है, वो भी ख़ानदानी है। मेरे नाना, मेरी दादी, मेरी माँ, सभी लोग मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बचपन से ही क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे परहेज़ है डिसिप्लिन से, परहेज है बहुत discipline से, ज़्यादा, okay. बिल्कुल कोई शर्म नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करने में। अगर आप अभी मुझे इस पॉडकास्ट के बाद बैठा के कुछ सिखाना चाहेंगी, आई वुड बी लाइक नो, But you pick not up, I happening. think, हाँ, instinctively and right, intuitively, and where the heart goes, you flow, है ना? हाँ. आई थिंक किसी चीज़ को अगर आप दिल से सीखना चाहेंगी तो वो तभी हो पाएगा जब कोई बंदिशें ना हो। There are no restrictions. So is there a part of you that is spiritual as well? Big time. Like how did that happen? ये बचपन से है। हाँ. ये बचपन से कैसे? है। I'm picking that up. That's why I asked. Yeah. राइट, वो भी थोड़ा सा तो फैमिली में वो दिख ही जाता है, मगर अगेन बीइंग रिलीजियस और Spiritual is a big आध्यात्म difference. जिसे हम कहते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है, और वो Right. धीरे धीरे ही कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सीखता है और आगे बढ़ता है। तो बचपन से हमें श्री चैतन्य महाप्रभु एंड रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में बहुत पढ़ा। सिर्फ पढ़ के ही नहीं, लोगों से सुन के, अपने आसपास के, अगेन कल्चरल अफेयर्स, दिल्ली में बहुत इवेंट्स होते थे। जब भी कलकत्ते जाने का मौका मिले तो उन जगहों में हम गए जहाँ पे ये लोग पैदा हुए, पले बड़े। You know, I have a theory कि जो genuine spiritualists होते हैं ना, वो बात कम करते हैं और वो उस चीज़ को, उस एहसास को महसूस करते हैं ज़्यादा। बिल्कुल। तो जैसे you have this, you know, you had this thing to move away from the city, go to Almora, that is where my heart is, and kind of settle there. There is a call that is greater than Yeah, all of indeed. this. Interesting right? cheese. I would really love to share it with you and with you all, whoever is listening to us or viewing rather. Yeah. बचपन में मैं 1989 में पैदा हुआ, तो उस ज़माने में लोगों को सिखाया जाता है कि बेटा बड़े होके आपको या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, क्लासिकल म्यूजिक से तो डेफिनेटली नहीं बनना है, पेंटर वेंटर कुछ नहीं बनना है। फैक्ट यही है। तो घर पे भी यही बातें चलती थी, मगर मुझे याद है कि स्कूल से आके जो दोपहर का खाना हम अपनी माँ के साथ खाते थे, तो ज़्यादातर दिनों में हम जिक्र करते थे कि माँ बड़ होए आमरा एकटा ग्रामे थाकबो, तो जिसका लिटरल तर्जुमा है कि मम्मी बड़े होने के बाद ना हम दोनों, मैं और तुम, किसी गांव में जाके रहेंगे। और मेरे जहन में वो गांव वो नहीं था कि ये गुड़गांव या फिर जहाँ पे गांव में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। अभी तो गांव में भी वैसा हो गया है, क्योंकि हम लोग उस ज़माने में ट्रेन से कलकत्ता जाते थे। साल में एक ही बार जाते थे,
और वो जो यूपी बिहार के गांव मुझे दिखते थे, छोटे छोटे हट्स हैं, बड़े बड़े खेत खलिहान और बीच में से 10-15 घर, Right. तो वो मेरे जहन में इस तरह रच बस बस गए। गया कि वो मेरा एम्बिशन था Right. कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये एम्बिशन कभी नहीं था। वो एम्बिशन था Experience, कि हाँ। वो हाँ एग्जैक्टली वही हाँ, है, एक्सपीरियंस। मुझे when I used to go in as a child and I used to go on these long train journeys, जो 2-3 रातों वाली journeys Right. होती थी, and जैसे ही तुम बोल रहे हो ना, that those खेत खलिहान के हाँ. बीच में those झोपड़ीज Right. and those little groves of forests, हाँ, हाँ. I used to want to just hop out of the train, go into that forest and sit there. Yes, indeed, है indeed. ना? और वो There's this मैंने sense of leaping out. राइट वो मैंने and- किया भी है, थोड़ा रिस्की भी है। ट्रेन कभी स्लो हो जाता था या कहीं रुक जाता था। Really? उस जमाने में ट्रेन लेट बहुत होते थे, Yeah, right. तो मैं उतर जाता था। हाँ. चलो थोड़ा घूम के आते हैं। Wow. नहीं, मेरे को कभी I didn't have the guts, but my heart used to just jump out of my body and I feel and go inside that jhopdi, go inside that grove, go to the talab, so I had that kind of a connection, but I have never been as adventurous as you. But however, coming back to the story of your evolution, when and at what point did you really realize that I'm not really part of the mainstream in how I identify, and how did that story really come about? अब ये आइडेंटिटी अगर हम तो इसके दो पहलू हैं। एक है मेरी सेक्सुअलिटी। ज़्यादातर लोग जो अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अपने ज़िंदगी का। Right. मगर फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी था ही नहीं, ना अभी है, ना कभी होगा। क्योंकि सो आई एम लाइक 1000% गे। मुझे Yes. मर्द पसंद है। मुझे नहीं, मर्द थोड़ा Yes. हार्ड हिटिंग है। मुझे लड़के पसंद है। लड़के पसंद है। मैं लड़का हूँ, Of मुझे course. लड़के पसंद है। Absolutely. Sexually. Yes. मुझे लड़कियां भी पसंद है देखने में, उसके आगे कुछ नहीं। तो मैं तारीफ बहुत करता हूँ लड़कियों की। कभी वो लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि ये तो Right. फ्लर्ट कर रहा है, हाँ. मगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं, No वहीं रुक danger जाओ। there. कुछ come अरमान close. अरमान मत रखना दिल में क्योंकि कोई मतलब कुछ नहीं हो सकता। Right. बिल्कुल भी नहीं। तो दो पहलू है कि जो आपने कहा कि कब वो एहसास हुआ दैट यू आर डिफरेंट। वो डिफरेंट मैं बचपन से ही था। जहाँ भीड़ है वहाँ मैं नहीं जाता। जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना। एंड थैंकफुली मैं अपने जो मेरे दिल्ली में जिस स्कूल में मैं गया, वहाँ के टीचर्स को मैं तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बचपन से मुझे कभी किसी भी टीचर ने स्कूल में फोर्स नहीं किया कि आपको ये करना है, कभी भी फोर्स नहीं किया। और मुझे पता है कि जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, ये है अर्ली 2000, जब मेरा मिडिल स्कूल शुरू हुआ। Right. उस ज़माने में फोर्स किया जाता था बच्चों को बहुत ज़्यादा, चाहे कैसा भी स्कूल हो। So what kind of, give me an example of क्या force किया जाता था and where were you lucky? मेरे बाबा जो हैं वो स्कूल पहुंच जाते थे बार बार। प्रिंसिपल से शिकायत करते थे कि हमारा बेटा वो घर पे सिलेबस की किताबें छोड़ के वो तो नॉवेल्स पढ़ता है, और वो नॉवेल्स पढ़ता है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। लाइब्रेरी से उसको ये सब क्यों इशू किया जाता है? So my teachers were very clear कि he is an artist. शायद उन्होंने देख लिया था। गाना बजाना तो बचपन से ही था, और उस चीज़ के लिए आई थिंक एक फेवरेटिज्म भी था, थोड़ा पार्शलिटी भी था टीचर्स का मेरे प्रति। तो बहुत प्यार दुलार मिला उसी चीज़ के लिए। तो मुझे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया कि अगर किसी ऐसे बहुत टाइम है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मगर मेरे टीचर्स अलाउ करते थे कि बेटा ठीक है, आपको क्लास अटेंड नहीं करना, आप लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ। Wow. Okay. एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। Yeah. और किसी के साथ मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा, मेरे साथ होते हुए। मैथ्स क्लास में हमारे मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा ठीक है, आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप लाइब्रेरी चले जाओ, आपको जो पसंद है वही करो। But were you good at maths? No. इवेंचुअली, Eventually. बाद में हाँ. 8, 9, 10th में फुल मार्क्स आते थे। But was there like a guy in school that you were attracted to? No. Or all that? No, So no, when no. when did all that ये start? वो एहसास तो स्कूल में ही शुरू हो गया।
कुछ तो ये थोड़ा इतना भी गोरी डिटेल नहीं है, मगर मेरे लिए काफ़ी गोरी डिटेल्स है। जब मैं क्लास 7-8 में था, तो जो 11th और 12th के ग्रोन अप बॉयज थे। बॉयज़ थे, और उस ज़माने में ना लड़के काफ़ी टाइट फिटिंग पैंट्स पहन के आते थे। तो जो चला गया है वो स्टाइल, अब कोई Right, पहनता नहीं right, उतना हाँ, टाइट। हाँ. The crotchy ones. राइट, क्रॉची वंस। हाँ, तो उनका पूरा बॉडी आउटलाइन दिखता अच्छी तरह है। से दिखता है। तो लड़कियां तो दिखती थी, मैं भी Eye देखता candy. था। बिग टाइम आई Big time कैंडी, eye राइट। candy, right. तो जब वो सामने से चल के जाते थे, हाँ, तो हम बस निहारते रहते थे खुश हो जाते कि थे। उनका नहीं, वो खुशी, अब वो खुशी क्या थी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, right. मगर अच्छा लगता था। और हम तब, हमारी उम्र क्या रही होगी, 13-14 साल। Right. वो प्यूबर्टी है, एडोलेसेंस है, आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस, सारी तब्दीलियाँ तब से शुरू हो जाती है। तो आपको थोड़ा बहुत तो पता है, क्योंकि फिल्मों में काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं, मगर एक बड़ा हिस्सा है जो आपको पता नहीं है। तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये गलत है। अब क्यों गलत है? अगर नॉर्मली मेरे काफ़ी उस ज़माने में दोस्त वगैरह थे जो इंडल्ज तो करते थे, सेक्सुअल इंडल्जेंस भी। 13-14 साल की, मैंने तो मतलब लड़के हो या शुरू हो लड़कियां हो, जाता शुरू है, हो जाता शुरू है, हो जाता है। शुरू हो जाता है। और Right. मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगा कि मेरे क्लास में भी थे, मेरे इर्द गिर्द नेबरहुड में भी काफ़ी बच्चे थे, मेरे भी इंडल्जेंसेस रहे हैं। एंड मगर आपको पता नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली आप क्या हैं, तो ऐसा स्पेशली कोई, हाँ, जब अल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी की बात आती है। बट ऐसा कोई था जिसके पास आप जा सकते थे फ्रीली, फियरलेसली, नो, और पूछ सकते थे? नो, नो काउंसलर, नो, उस जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, एंड नहीं, नो, नो एडल्ट क्योंकि वो सबके आंखों में दिखता था कि लोग जज कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग इज कि बीइंग अ लिटिल एफेमिनेट, तो आई डोंट नो कि कितना एविडेंट है या कितना नहीं, मगर आई फील कि मैं हूँ थोड़ा एफेमिनेट। No, I think you're just confident about who you हाँ, are, बिल्कुल। and the feminine part of you हाँ, also you own. हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। If that is called effeminate, then yeah, राइट, sure. राइट। Yeah. तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी तो खैर कम हो गया, मगर अभी भी लोगों की आंखों में दिखता है कि एक सर्टेन वे में आप बिहेव नहीं कर सकते। Right. आपको वो लौंडा बन के रहना है। Hmm. बचपन से ही मैं लौंडा तो नहीं था, और ना ही ये शब्द मुझे पसंद है, ना ही लौंडे मुझे पसंद है। बचपन से ही लौंडे का जो दूसरा एस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंट, Right. एक कन्विक्शन, वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा था। वो अभी तक एविडेंट वो अभी है। तक है, हाँ, एविडेंट right, है। right. Absolutely. तो Absolutely. वो था। तो बचपन में अगर कोई कुछ कह भी रहा है, तो हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि उसको 2 गाली बक देते थे। अब दिल्ली में पैदा हुए, गाली तो सीखेंगे। तो There's something very me about you, उस हाँ? चीज़ ने ओके, हम बात करेंगे इसके बारे में। बिल्कुल, we must. तो और मेरे दोनों एस्पेक्ट बरकरार थे कि मैं एक प्राउड बंगाली हूँ। तो बंगालीज काफ़ी गर्म खून के, गर्मजोशी बहुत होती है उनके अंदर। एंड द सेम गोज विथ दिल्लीइट्स। Yeah. तो आई थिंक, एंड आई वुड से कि उस चीज़ ने मुझे बचा के रखा। अगर मैं, पहली बात तो मुझे लड़के पसंद है, दूसरी बात फेमिनिन एस्पेक्ट को मैं पूरी तरह से ओन कर रहा हूँ, तीसरा मुझे वो कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो बाकी 10 लोग कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी डेंजरस है Right, the combination. एक बढ़ते बच्चे के लिए। Absolutely. अब अगर वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी नहीं है, अगर वहाँ पे आप टिमिड हैं, And fearful. फेयरफुल, तो फिर जो सोसाइटी है, They will eat you up. जो मुआशरा है, वो आपको बिल्कुल खा जाएगी, खा जाएगी destroy और करेगी। दबा देगी, आपको बिल्कुल, उभरने ही नहीं देगी। बिल्कुल। और मैंने देखा है ऐसा होते हुए, अब भी मुझे दिखता है राइट कि लोग right. डरे हुए हैं, सहमे हैं, अपनी बात वो नहीं रख पाते हैं। तो आई थिंक दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्धनारीश्वर, राइट, जो हिंदुइज्म में है, एंड शिव जी का जो रूप है, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ दैट कमिंग इनटू प्ले हियर, हाँ, where you have the confidence, where you have the ownership,
and you're not afraid to, come out and say that this is what I am and I'm 100% अगर हम clear. अपने लिटरेचर में जाए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को देखें, तो वी से चैतन्य महाप्रभु, और लिटरेरी टेक्स्ट्स में, क्लासिकल लिटरेचर में उनके बारे में उनका जितना उल्लेख है, जितना मेंशन है, उसमें बहुत कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि ये पुरुष भी है Hmm. और नारी भी। ऐसे बंगालियों में कीर्तनिया करके एक समाज है, Hmm. जो लोग सिर्फ श्री राधा कृष्ण के कीर्तन गाते हैं, और उसमें चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये भक्ति मूवमेंट उन्होंने ही शुरू किया इंडिया में। Right. एंड उस दौरान काफ़ी चीज़ें गानों में आता है जो लोग सुनते तो हैं, सुनते तो हैं। मगर उस पर गौर नहीं फरमाते। And I suppose it's kind of you're caught up in that poetic reverie, but once it breaks, you go back to your old self बिल्कुल। and your old Bilkul. patterns. Okay, so now coming back to love, when did that first happen for you? It's a very unfortunate kind of a thing in my life that I haven't found love yet. Okay, Uh, that's sad. yes, sad. उम्र के इस पड़ाव में आके लगता है it's sad. In my early 20s, 30 तक पहुँचते पहुँचते कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। हमें लगता था कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, और जब देखते थे दूसरों को तो लगता था Couples. कि कपल्स, एंड हर तरीके के कपल्स, मशी कपल्स, स्ट्रेट कपल्स, गे कपल्स, तो हमें लगता था कि ये सब बेतुकी बातें हैं। So what were your experiences like that actually did not fructify into love? Or I didn't kind of dated anyone seriously ever. मेरे सिर्फ हुकअप्स रहे हैं, मल्टीपल, आई थिंक अब तो गिनती भी नहीं कर सकता, वेरी वेरी ऑनेस्टली, और मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। yeah, of course. इट्स अ बॉडली डिज़ायर, सो यू नीड इट, मगर दोनों चीज़ें काफ़ी मुख्तलिफ है, लव और Love, emotional, mental compatibility, companionship. there was someone Hmm. very briefly. Hmm. Well, for him it was very brief. For me it was a very elongated process, Okay. and that happened when I just turned 30, Hmm. just a couple of years ago. So I met with him and I thought he's the one, and I can spend my entire life with, वो घंटी बजती है, दुपट्टे उड़ते हैं, Romance, रोमांस, हाँ, वो सब हाँ. हुआ, Dhak dhak. धक धक The dhak अंदर dhak से। factor. हाँ, हाँ. एंड बेगम अख्तर तो बचपन से सुनता था, कुछ ज़्यादा ही सुन लिया उस दौरान। तो फरीदा खानम को छोड़ के अब बेगम अख्तर पे ज़्यादा फोकस करते थे कि हाँ. रिलेट कर पाते थे कि सारे गिले शिकवे और हाँ. सैया रूठ गया तो सब कुछ। हाँ. तो एनीवे वो सब हुआ हमारे साथ, और हाँ. हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए उसमें, एंड मगर वो अच्छा हुआ। इट्स गुड कि एटलीस्ट वो 20s में नहीं हुआ, वो 30s में हुआ। Why is that? जिंदगी में जिन चीज़ों को, अगेन शायद वो बचपन से थोड़ा बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बचपन में कोई करीबी दोस्त ना होना, तो चारों तरफ से जो प्यार, जो मोहब्बत के अनेक रंग होते हैं, तो जो नहीं मिला, शायद वो ये एक जो शख्स है, फिर उससे आप सारी उम्मीदें लगा बैठते हैं, और वो गलत है। मगर गलत तो है, मगर ज़िंदगी में जो आपको एक्सपीरियंस करना है वो तो करना ही है। अगेन अब वो स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है, Right. कि हम सबको कहते रहते हैं कि हर चीज़ पे आप कि उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको पूरी तरह से आप ओन कीजिए, उसको बस जिए, आप पूरी तरह से उसको जिए, और Right. फिर देखिए क्या होता है, आप उससे उभर के आएंगे। Absolutely. तो वो हुआ हमारे साथ। जिंदगी की कई इमोशंस which I always thought it doesn't exist in me. I cannot fall in love with somebody, or I wouldn't feel so strongly for somebody. Nothing can tear me up. Nothing can shake me. Whatever I kept denying my entire life, in my existence of 30 years, it all happened to me, and it all came true, and I lived through it. Yeah. And I'm so glad I lived through it.
So, when you're saying that this encounter only happened in your 30s, but in your late teens and in your 20s, you must have कोई मिला still. नहीं, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा. बहुत ही ज़्यादा. नहीं, लेकिन you were working in a sort of a field like PR, Right. and that's, to do with a lot of agencies, parties, wild Oh, yes. sort of Big time. encounters. So I'm sure you had a lot of wild encounters nonetheless. So tell me about that phase. What it taught you. What are your insights from it? I'm not very fond of the industries because most of them are extremely superficial. Mm, I I never felt connected to them. It was always my profession, and I kept it at a good distance. My personal and professional life have always been different. Uh, and people who know me up close, even from the industry, they knew that after attending a party, after concluding a fashion week, after concluding a brand launch, I would go into a jungle for the next couple of days. बिल्कुल छोटे शैक्स में रहना, अपने बैकपैक में सारा टेंट और खाने पीने का सामान लेके. I'm a backpacker. जंगलों में खुद ही घूमना. तो ये बैलेंस हमेशा से था. एंड अगेन उसी चीज़ ने शायद मुझे बरकरार रखा. अर्ली जो करियर था मेरा, 2011 में मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा. फैशन पीआर, पार्टीज, जैसे कि आपने कहा कि इट्स ऑट टू बी वाइल्ड, एंड इट वाज प्रीटी मच. वो ग्लैमर, इतनी चकाचौंध पार्टीज, फ्री का दारू, फ्री का खाना, किसको अच्छा नहीं लगता कि, और वो भी 21-22 साल में, इतनी कम उम्र में इतना हाँ, कुछ मिल जाना. लेकिन फ्री के प्रॉमिसेस भी तो होते हैं उसी चक्कर में. यस, फ्री के प्रोमिसेस होते हैं, पैसा अच्छा मिलता है, आप पैसा कमाते हैं. एंड जिन लोगों के साथ आप घूमते हैं, वो द सुपरफिशियल वर्ल्ड, आपको लगता है कि आप उसी का हिस्सा बनते जा रहे हैं. मगर थैंकफुली बहुत कम अरसे में हम उससे ऑर्गेनिकली, अपने आप को फोर्स नहीं किया, मगर ऑर्गेनिकली निकल गए. एंड आई बिलीव वो एक अच्छा एहसास भी था और एक अच्छा दौर भी था कि शुरू से हमने अपने आप को पहले रखा और बाकी चीज़ों को बाद में. तो धीरे धीरे हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसे बना लिया कि अच्छा, अब हम काम कम करेंगे और ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएंगे. और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं 25 साल का था. एक 25 साल का लड़का, उसका फोकस होता है कि इस इंडस्ट्री में कि मैं तब तक एक BMW या एक Audi खरीदूं. कितनी जल्दी साउथ दिल्ली में मेरे पास एक अपार्टमेंट हो सकता है, या फिर गुड़गांव में. वो सारी ख्वाहिशें कभी नहीं थी. शायद थोड़ा बहुत था, मगर उसको हमने इतना महत्व नहीं दिया. And I think it's a very good. Do you think but you could afford to not have that khwahish, because to some extent you came from privilege, to some extent you came from a cultured, literate, वो भी intellectually balance bent. हाँ, नहीं, अगेन अगर पहली बात जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, तो अर्ली एज में दोनों देखा. एक खानदान में पैदा हुए जहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और फिर देखा कि एक्सट्रीम फाइनेंशियल लॉस, पॉवर्टी, नॉट लिटरल पॉवर्टी, मगर हमारे लिए तो पॉवर्टी ही था. एवरीथिंग वाज टाइट. राइट, बहुत ही ज़्यादा टाइट. इतना ज़्यादा टाइट कि स्कूल के फीस देने के भी पैसे नहीं थे. म्यूजिक लेसन्स नहीं कंप्लीट कर पाया अर्ली टीन्स में, क्योंकि पैसे नहीं थे. दुर्गा पूजा में नए कपड़े नहीं ले सकते हैं क्योंकि पैसे नहीं थे. मगर अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पूरी जिंदगी उस फीलिंग को फिर ढोते रहते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं. उससे कुछ हासिल नहीं होता है. हमने सब देखा है, मगर फिर बहुत उतार देखा है, बहुत मतलब उसके बाद भी बहुत चढ़ाव भी देखा है और बहुत उतार भी देखा है. उसके बाद फिर से चढ़ाव देखा है.
एंड आई गेस लाइफ तो यही है ना कि हर Hmm. चीज़ का एक बैलेंस है. तो Hmm. ज़िंदगी में मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैं ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, मगर अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी आए आप उसको एम्ब्रेस कीजिए और बस अपना काम करते रहे और Hmm. अपनी अपनी जितनी भी ख्वाहिशें हैं अगर वो जेन्युइन है तो वो होगा ही. But tell me कि your along with your PR and your professional work, you had this travel bug also. Oh, कि big मुझे time. हाँ. Oh. तो you tell me about that कि वो कैसे शुरू हुआ? How did you create the space for it along with your work? How did you finance it? How did you do all that? धीरे धीरे. I would say everything happened in my life gradually. Nothing was overnight. Hmm. Nothing came to me overnight. And अब जिंदगी के इस पड़ाव में आके लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ सब कुछ नहीं मिल गया. दिमाग खराब हो जाता है. और वो हमारे खानदान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. मेरे नाना इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मल्टीपल बिजनेस थे. वी आर फ्रॉम ईस्ट बंगाल. सब कुछ छोड़ के वो वेस्ट बंगाल में आए, फिर से सब कुछ नया किया, उससे डबल किया. एंड मेरे अंकल्स हैं, वो सबका दिमाग खराब था. बहुत पैसा है, बाप का पैसा है, हम तो शहनशाहों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. और जो मरते दम तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारी. गुजारी. Hmm. अच्छा हुआ कि वो प्रिविलेज हमें नहीं मिला. शायद हम भी, दिमाग शायद खराब. नहीं भी, आप मतलब कान से. जनरलाइज नहीं कर सकते. मगर आई वुड से कि मैं लकी था कि मुझे दोनों चीज़ें देखने को मिली. को नसीब हुआ, तो मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता था और वहाँ से अपने लेसन्स भी लिए, ख़ानदान से भी और बाहर की जो दुनिया है उससे भी. अभी यहाँ इस सीट पे बैठ के मैं कहूँगा कि मैंने हाँ उस ज्ञान को अप्लाई किया, मगर शायद नहीं किया, बस होता गया. सो No, but how did you come to travel so much? What was the trigger that made you, decide कि अच्छा मुझे दुनिया देखनी है, मुझे साइकिल करना है यहाँ से वहाँ, वो सब मतलब कैसे आया आपके दिमाग में और करते क्या हैं आप? ओके, मैं शायद पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा हाँ, तो वो हो वही. गया. हाँ. राइट, ट्रैवल. हाँ. ट्रैवल की बात करें तो अगेन जैसे कि मैंने कहा What are कि the places you've सब been? कुछ What are the ग्रेजुअल, routes? सब कुछ ग्रेजुअल हुआ है. हम्म. धीरे धीरे मेरे जिंदगी का जो पहला सोलो ट्रैवल था, मुझे याद है मैं मैक्लॉडगंज गया था. एंड रीस विदरस्पून की एक मूवी है, वो बैकपैकिंग के ऊपर ही है, जिसमें वो यूएस कनाडा का एक ट्रेल है, उसको पैदल कवर करती हैं. तो उसने अपने बैग में सब कुछ डाल लिया. मैंने भी वैसा ही किया था. गलती हो गई तो लोड ज़्यादा हो गया, कंधा झुक गया, मगर मैंने अपना ट्रैक पूरा किया. कितने किलोमीटर्स, कितना? मैक्लॉडगंज से तुरंत का ट्रैक इजी भी नहीं है, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मगर मेरा जो डेस्टिनेशन था वो था इंद्रहार पास. सोलो, अनगाइडेड, नॉन सपोर्टेड, जो कोई नहीं करता, और मुझे ट्रैक करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो मैं इंद्रहार पास तक तो नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ पे आइस शीट जमी हुई थी. इट वुड हैव बीन डिजास्टर, इट वुड हैव बीन डेंजरस. मगर हम लहेज केव तक गए, वो भी काफ़ी मुश्किलों भरा. कितने घंटे? 2-3 दिन. ओके. 3 दिन टेंट लगा के हम रुके. वो पहला था. और उसके बाद हमें जब भी मौका मिलता, महीने 2 महीने 6 महीने, अगले 3-4 साल ऐसे ही गए. उसके बाद रेगुलरली हम ऑलमोस्ट हर एक वीकेंड पे, एंड फॉर्चुनेटली हम जिस शहर में रहते हैं दिल्ली में, वहाँ से हिमालय के काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस पास इट्स जस्ट एन ओवरनाइट जर्नी. राइट. तो वो सब हमने किया. एंड देन साउथ ईस्ट एशिया. मैंने एक बहुत वाइल्ड ट्रिप था, थोड़ा सा रिस्की था मगर बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था. म्यांमार, बर्मा, मणिपुर बॉर्डर को पार करके हमने रोड ट्रिप किया, करीब 15 दिन का. एंड इट वाज वंडरफुल. Just you, or you had a group with you? No, it was me. I'm a solo traveler. I've always been traveling solo. I do not like to travel in a group because then you have got commitments, you've got time issues, and बाकी लोगों का सोचना पड़ता है. So मतलब आप कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी अपना खाना वाना ये सब क्या करते हैं ऐसे? तो म्यांमार ट्रिप में ऐसा भी हुआ कि रात को बस स्टेशन में अपना बस्ता सिरहाने रख के हम सो गए,
और लोगों को कहा कि ज़रा ध्यान रखना भाई, सुबह 8 बजे की बस है, वो छूट ना जाए। हाँ, तो उतना शोर शराबा कि बस स्टैंड में, लाइक लिटरल बस स्टैंड में स्टैंड पे। हमने रात गुजारी, वहीं सो गए। हाँ, क्योंकि होटल में जाता तो ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, होटल में जाता तो आराम की नींद आती और ये भूल जाते नहीं हैं। पहुंच पाते, हाँ, तो ऐसे भी किया है। हाँ, हिमालय में रात को चलते चलते कहीं भी टेंट लगा लिया, जंगलों में सो गए। आर्मी वालों से झगड़ा हो गया कि यहाँ पे आप नहीं रुक सकते, परमिसिबल नहीं है, मगर तो और एनिमल्स वगैरह से मतलब फॉर्चुनेटली आज तक भगवान का लाख लाख शुक्र है, किसी एनिमल से कभी स्कॉर्पियन, स्नेक, नथिंग? नो नो नो, कभी नहीं, कभी नहीं, अच्छा, कभी और नहीं, कोई मेडिकल इमरजेंसी ऐसा कभी कुछ कभी नहीं नहीं हुआ? हुआ। एक बार हुआ था, एक एंकल ट्विस्ट हो गया था, हाँ, मगर फिर भी हमने करीब 8-10 किलोमीटर का डाउनहिल ट्रैक कर लिया, वो भी बरसात में। वाओ। तो So somewhere God is with you, huh? Guiding you, huh? I hope to believe so, yeah. But coming back to और उसके बाद शुरू हुआ साइकिलिंग, okay, लॉन्ग डिस्टेंस so साइकिलिंग। walking is different, cycling is Yeah. different, and now you're doing a cycle trip to the entire Gangetic route or something. Yes, What is that? yes. Huh. Cycling, I started cycling, I have always been cycling all my life, but long distance cyclist happened to me during the lockdown, the Mhm. first one. I bought a very basic cycle from Decathlon. I said that just give me something very basic. I'm just going to ride a few kilometers every day. But so much so happened, and I started riding 100 plus kilometers in just a few weeks, and there was no looking back from then. Wow. तो आप अल्मोड़ा में भी साइकिल करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अल्मोड़ा में साइकिल करते हैं, पहाड़ों में। आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरे साइज पे मत जाओ। मैंने काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सा प्लम्प है, जो हाइट छोटी है, आप कैसे इतना वाइल्ड ट्रैवल कर लेते हैं। आई वाज लाइक, Dude, don't underestimate किताब me. का पहला पन्ना देख के जज मत कीजिए, अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। अच्छा, so when you what was your coming out story all about? How वो did that भी happen? ग्रेजुअल था, एंड काफ़ी हाउ वुड आई पुट इट, काफ़ी अग्रेसिव था, क्योंकि जिस एज में आई केम आउट एट द एज ऑफ 19, Wow. और जब मैं 19 साल का था तब सोसाइटी काफ़ी डिफरेंट था। Hmm. तो people still, kind of wanting to shove these things and under the carpet. कोई बातचीत नहीं करना, people weren't just comfortable. Hmm. सिर्फ इवन कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में कोई भी नहीं। मैंने अपना करियर आईटी से शुरू किया, 2 साल में आईटी इंडस्ट्री में था, आई वाज इन बिजनेस डेवलपमेंट, और उसके बाद पीआर इंडस्ट्री में आया। यहाँ आके मुझे बहुत एक्सेप्टेंस मिला। मैंने देखा कि यहाँ पे लोग खुलेआम अपने सेक्सुअलिटी को जाहिर भी करते हैं और उसको जीते भी हैं। दूसरी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। रूल्स तो थे कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मगर उस पर अमल कोई नहीं करता था। आईटी इंडस्ट्री में 1-2 किस्से ऐसे भी हुए जो एम्बैरसिंग है और खून खौलने वाला है। जैसे कि I was in a company called Quattro, which is headed by Raman Roy. वहाँ पे जो मेरा पहला साल था, एक लड़का था, बहुत ही ज़्यादा adamant, sort of an audacious sort of a person. एक दिन उसने फ्लोर पे उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे इशारा किया कि would you like to suck my? Wow. इशारों में कहा, अपने ज़ुबान से कुछ अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए उस शख्स ने, मगर उसका इशारा इतना एविडेंट था कि उसकी माँ भी समझ लेती। Oh my goodness. So did you report it? I didn't, क्योंकि तब मैं थोड़ा सा टिमिड था इस एस्पेक्ट को लेके, इतने कन्विक्शन नहीं था। नहीं, maybe you were just finding yourself alone. Because हाँ, वो भी था, है ना? क्योंकि कंपनी में काफ़ी लड़के थे, आदमी भी थे उम्र दराज, जो
100% बायसेक्सुअल थे, मगर कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता. डेटिंग ऐप्स में आपको सब दिख जाता है, वहाँ कुछ छुपता नहीं है. तस्वीरें तो आप भेजेंगे ना मिलने से पहले. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो एक जो वो किस्सा था, और बहुत साल बाद हमने जब वो सबके सामने जाहिर किया, तो फिर काफ़ी लोग, हाई कॉर्पोरेट टीम से काफ़ी लोगों ने मुझे रीच आउट किया लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, कि आपने या तुमने तब उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया. ये एक एथिकल इशू है और उसकी नौकरी जा सकती थी. So, did you feel that if you came out with it, you wouldn't be supported? आई वॉज ओपन. ऑफिस में ज़्यादातर लोग जानते थे मेरे सेक्सुअलिटी के बारे में, और लोग पूछते भी थे कि ये अब नॉर्मल है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ यार, अपने आप को ठीक कराओ. मैंने तब तो मीडिया में भी इतनी बात कोई नहीं करता था, बट आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. ऑल्दो शायद मैं इतना वोकल नहीं था, मगर मैं अपने आप को लेके बहुत कंफर्टेबल था. तो मैंने सबको यही कहा कि ये नॉर्मल है, आप पढ़िए ना इसके बारे में. चलिए, आप वेस्टर्न कल्चर को भूल जाइए, आप अपने कल्चर का जो इतिहास है उसको तो पढ़िए. हमारे एपिक्स पढ़िए. महाभारत में और कई किताबों में, पुराणों में जिक्र है. सिर्फ अर्धनारीश्वर का ही नहीं, ऐसे कई जगहों में कृष्णा, अर्जुन, कृष्णा, शिवा, इन सब का मतलब गोरी डिटेल्स के साथ इनके सेक्सुअल एनकाउंटर्स का उल्लेख है. तो आपको अपने ही कल्चर के बारे में अगर नहीं पता, तो फिर मतलब आपसे आई डोंट नो, फिर आप आर्ग्यूमेंट्स क्या दे सकते हैं ऐसे लोगों को. और लोग इस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. मोस्टली अभी तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है. पहले एंड फिर नेम कॉलिंग शुरू हो जाता है. आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. ये मेरे साथ भी हुआ. उतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि मेरे मुंह पे बोलेगा तो ये छोड़ने वाले में सुन नहीं है. ये मुंह पे वो तुम्हारे मतलब आई वोंट लीव समबडी, आई वोंट स्पेयर. But you are one of the few people who is, like you said, very comfortable owning your story, owning your sexuality, talking about what happened and how it happened, how you came out. But there would be so many others Yes. who are in a much more vulnerable position than you. उस right? जमाने में थे, मेरे स्कूल में थे, मुझे दिखता था. तो उनसे कभी बात की आपने? नहीं, मेरी तब भी बात नहीं हुई, मेरी अब भी बात नहीं हुई. Okay. एवरीवन न्यू, इवन आई न्यू, मगर वो उनको बहुत वक्त लगा क्लोजेट से बाहर आने में. अपना अपना वक्त है, कोई बात नहीं. अगर हम ऐसे सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ पे इस चीज़ की मंजूरी ना तब थी ना अब है. But do you think अब तो things are better? नहीं, नहीं? I wouldn't say so. Why? How would you say things are better? अब मैं जहाँ रहता हूँ, हाँ. अल्मोड़ा में, हाँ. मैं वहाँ पे अपने सेक्सुअलिटी को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता. You mean you can't have a partner come and stay with you or? I can. मेरे घर पे मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूँ. हाँ. मेरी जो केयर टेकर है वो अभी इस चीज़ को सोचती है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, कि मैं वो टर्म गे तो समझ नहीं आएगा, होमोसेक्सुअलिटी भी उनको नहीं समझ आएगा, क्योंकि वो जो सोसाइटी है वो बहुत सिमटी हुई है अपने आप में. उतना ही उनका bandwidth दायरा है, उसके बाहर वो सोचना नहीं चाहते, सोच ही नहीं पाएंगे. दिल्ली भी ऐसी है. जिस सोसाइटी में हम जीते हैं, आप, मैं, इंडस्ट्री के लोग या फिर काफ़ी, वहाँ पे दिखता है कि सब नॉर्मल है, बहुत कंफर्ट है, प्रिविलेज है. मगर क्या इंडियन सोसाइटी में सच में वो प्रिविलेज है? चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर जाते हैं, हरियाणा में, पंजाब में ऑनर किलिंग्स अब भी होती हैं. मुझे पता है, मैं लोगों से मिला हूँ. कहानियाँ जो हैं वो आपको झंझोड़ के रख देंगी,
मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रिविलेज हूँ क्योंकि मैं ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जो बहुत लिबरल है, बंगाली सोसाइटी है, ऊपर से कलकत्ता एंड देन दिल्ली, तो प्रिविलेज तो मैं हूँ। But what you're saying about honor killings and what you're saying about कि अभी तक वो acceptance नहीं है. But don't you think that social media platforms like all of this and सब है, हाँ मगर है भी और नहीं भी। काफ़ी लोग एलजीबीटी कम्युनिटी में भी काफ़ी लोग शायद मेरी बातों से अलग विचार रखते हो, शायद इस चीज़ को नकार दें, मगर सच्चाई तो यही है। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बड़े शहरों को छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी पाते हैं। अगर आपकी ऑल्टरनेटिव सेक्सुअलिटी है और आप किसी छोटे शहर में हैं, आपकी ज़िंदगी तो बदतर है। So do you think this bisexuality is much more of a problem than we know about or we talk about it, and that is it's the same for men and women? Yeah, ऐसा कुछ. Well, What is your understanding? I guess I'm not the right person to talk about it because I'm not bisexual. I'm totally gay. Yes, I know. But I think with the people I've met and the kind of experience I've gathered over the years, I think it's fairly easy for them to live their life the way they want to because they can live a dual life. They can Yeah. get married, they can have kids, and still they can have sex. Yeah, or have romantic partner with the other Yes. gender. Yes, in fact, I have been recently told and sort of I have learned that there are a lot more bisexual men than we would think. Even there women. are. Even women. Even women. Even women, yes. Yeah, so that is quite a thing. But I would have assumed that now people have more forums to talk about it Yeah. and to धीरे धीरे change हो रहा है. See, I would like to say that we're living in a society, the Indian society is currently, in terms of the LGBT culture, we're living in a society which was in America in 1970s and 80s. really. So we have a long way to go. Okay, okay. But have you had any sort of trauma in terms of how this aspect of your life has been processed by society? Has there No. been no? And in that sense, I would like to say that I'm privileged, but my family and friends around and the cities I've lived in. But how did your family, talking about family, when you came out to family, when did you come out? Interestingly, I came out to my family after a very long while. I came out to my immediate family. I'm sure they knew. I mean, there was some sort of there was some sort of a tension in their mind, but they didn't accept it then, and they do not want to accept it now. Really? Although nobody wants to talk about it, nobody would like to confront me because they know I'm a disaster. Let it be any topic. What I feel is right is right. So I'm very dominant in But my would family. but in the sense that, so you're saying your family is in denial, Yes, they were in denial then, they're in denial now. and you think that that is the case with We're living in 2023 is the end of it. लोगों को लगता है कि country काफी evolve हो चुकी है. My mom is somebody who would look into the television and ask me that why don't you go and join the queer pride and support these people. But if I go to Calcutta and if I openly tell my extended family that, okay, why haven't I got married yet? Because I haven't found the right guy. And my mum would say, if she comes to know, she's like, do you think it's something to be very proud of for you declaring it in front of the world? And I ask her that there's nothing to be proud of, but there's nothing to be ashamed of either. That's me. So if somebody asks me a question that why haven't you got married yet? And like, haven't you found the right woman? yeah, Why the should I lie? I would say I haven't found the right man. guy. Yeah. It's a course. man. It's not a woman. Please. Yes. Yeah. I would be very offended if you
if you, kind of connect me with a woman, I would take offense, Yeah. like you would, or Yes. somebody else. That's my identity. Yeah. Why do you want to take it away from me? Yeah. Yeah. But unfortunately, that's how it is. Yeah. But वो बाहर जब दिखता है तो सब बढ़िया है, जब अपने ऊपर बात आ जाती है तो बट ये कम्युनिटी के साथ, आई मीन forgive me for sounding perhaps politically incorrect or whatever, but ये जो मैंने देखा है particularly maybe on social media, that people use the community or being part of the community more for attracting eyeballs now. Also I have found that this is, वो कह दो कि हम ये हैं तो everything else that I do not do perhaps is absolved, you know so that entire attention is taken up by the sexual identity of the person, so the rest of me doesn't really have to matter that much. Is there a trend of that, would you say? I wouldn't say that's quite right. Okay. You could say, like, I don't know if I should be saying this or not. A lot people might start cursing me. It's a thing with Gen Z. Okay. Yeah. Gen Z is always all about Instagram and YouTube and Reels and Facebook and Twitter. So they do not want to see things beyond that. Yeah. So it is very important. या फिर शायद वो सोशल मीडिया पे अब यही दिखाते हैं. यही दिखाते हैं और लोगों को वही दिखता है. आप उनके घर में जाके नहीं देखते हैं, उनके ऑफिस में जाके आप नहीं देखते हैं. जो तो दिखता है उसका एक इमेजरी जो है वो लार्जर देन लाइफ बन जाता है और वही बिकता है. और वही बिकता है. That's the problem I was talking about. TRP. तो वही है. So coming back to the person that you have become in all your experiences, where you are definitely well, you're definitely quite a maverick. Okay, you've owned several cultures and traditions. You are a sucker for the old world, but big time, you've yeah. assimilated it in the whole PR and the glamour world. You know how to take parts of it that you require for work, but you know how to pull yourself back and go off into nature to recuperate and recover and revive. So and that's my home now. Yeah. So what drives you now? Life. In what way? In many different ways. So वो एक कोई अच्छा सा शेर बताइए और कुछ गा के बताइए, something that really kind of connects with the essence of who you are today. It's very hard. अभी शायद मैं थोड़ी देर में आपको कुछ गा के बता सकूं जो इस सवाल का ठीक से जवाब दे पाए. मगर coming back to your questions, what drives me? It's life. बहुत क्लीशे हो जाएगा अगर मैं कहूँ कि कतरीना कैफ ने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में कहा था कि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी मुझे सरप्राइज़ करती रहे, मुझे इंस्पायर करती रहे. अब मैं चाहूँ या ना चाहूँ मेरी ज़िंदगी वैसी ही करती है. आई थिंक सबको करती है. वो लोग उसको नकारते रहते हैं. नकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं जो मैं नहीं देता. ऐसा नहीं है, शायद कभी कभी देता भी हूँ. When you say words like nakaratmak urja, I'm sorry, I mean, I can still figure it out, but this Gen Z will not figure it out. तो इसको मतलब इंग्लिश या चलती फिरती हिंदी में बोलो. नकारात्मक ऊर्जा is the negative energy. Okay. And tawajjo is experience, giving importance. Okay. Yeah. Okay. Tawajjo Right. उर्दू का giving शब्द importance, अल्फाज है. weightage. Right. So what does whips and chains mean to you? Of course, don't get into what it actually means in that sense. But what does it mean in terms of, the whips that you flog yourself with and the chains that have bound you down? We always have chains in our life in some way or the other. I would say कि आप अल्मोड़ा से हैं.
अब हम वहाँ के रेजिडेंट है परमानेंट, दिल्ली से हमारा कोई वास्ता नहीं है। मगर फिर भी अगर मैं अभी चाहूँ कि इस सीट से उठ के अभी गाड़ी निकाली और मैं चला गया नेपाल, वो नहीं कर पाऊँगा। तो वो बंदिशें हैं, लाइक चेन्स हैं, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, फैमिली कमिटमेंट्स है। ज़िंदगी में इतना कुछ लाइक हासिल किया है, काफ़ी कुछ, बहुत ट्रैवल किया है। इस साल के शुरुआत में मैंने इजिप्ट का पूरा लेंथ साइकिल से कवर किया, Wow. फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टिल द सहारा डेजर्ट। 300 किलोमीटर का सहारा डेजर्ट मैंने क्रॉस किया, सूडान बॉर्डर तक। Wow. तो ये सारी अचीवमेंट्स तो हैं, मगर जब हम दूसरों को देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रैवलर्स, वो एक एड्रेनलिन रश देता है, मगर उसको तुरंत खींचना भी पड़ता है। यू हैव टू रेन योर हॉर्सेस कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं। So when you do these wild things like travel the length and breadth of Egypt and all of that, so what are your parameters? Just not Egypt. So I have cycled the entire periphery of Kumaon. I have cycled from Maharashtra to Kanyakumari. And next year I'm going to cycle the entire length of Ganga. Wow. 2 countries, India and Bangladesh. So Fabulous. these are the things which are the driving forces. So how do you plan such a trip? What are the things that you'd keep in mind? वो unplanned. तो पैसे तो चाहिए ना? पैसे तो चाहिए, तो हाँ. तो PR. So are you saying that you just save And I'm also spend? getting I'm doing a lot of things. So apart from being a cyclist, like you said, I'm a musician, and now I'm also producing some independent music. Wow. So people will get to see. Give a sample the of other that. side. So एक गज़ल है, पाकिस्तानी, is a very acclaimed singer, अली सेठी, हमें बहुत ही पसंद है. So I'm going to produce it in the next few weeks. It's चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, न खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, लब पे एक बात बड़ी देर के बाद आई है. Oh, you brought me to tears with that one. So, anyway, whether or not you find that love that you're looking for, you evidently have the love of yourself that you deserve. I do. Thankfully, I do. Really. And that's a big, big blessing. I think that's the biggest compliment I've ever received. I could see that on your face, and I have no words. So I'm glad I'm able to bring those emotions in somebody. Yeah. No, that's absolutely really mind blowing, and I hope you get all the success you deserve. It's मोमेंट को थोड़ा सा लाइट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, जिन्होंने तो आपको रुला ही दिया. तो सस्टेनेबल लिविंग के लिए, जैसे कि हम I've shifted to Almora, where your heart lies still. Yes. And I've been living there for the past 3.5 years. And I'm trying to live my life as sustainably as possible. खाना पीना मैंने बिल्कुल पहाड़ी कर दिया है. All those भट की दाल, गेहत की दाल, मडवे की रोटी, जुअर की बात. And I'm building an eco resort over there.
So you're very much welcome to come Thank you. I and would live there. love to come. I would Yes. love to come It's and a huge actually. property, Uh-huh. although it's uber luxury, so not Huh. everyone can afford it. But Uh-huh. I think we need to preserve Huh. the place. So how did that happen? How did that germ come into your mind to leave all of this and मेरे go to जिंदगी Almora? में तो हाँ, तो अल्मोड़ा की बात अगर करें तो अल्मोड़ा के बारे में आई रेड अ लॉट, लिटरेचर में काफ़ी मेंशन है अल्मोड़ा का, ट्रैवल लिटरेचर में बचपन से काफ़ी पढ़ा, मगर आई नेवर न्यू कि अल्मोड़ा है कहाँ पे। और जब पता चला कि अल्मोड़ा सिर्फ नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ है, आई वाज लाइक I gotta go. मी, हाउ द हेल आई डिडंट नो। Yeah. दूसरे लॉकडाउन के बाद इन 2020 अक्टूबर हम गए। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल अपहीवल का जो दौर था वो चल रहा था। क्यों? The entire episode Episode of the love. of love. हाँ. Yeah, for me it was love, it still Yes. is. हाँ. उस शख्स को मैं ज़िंदगी भर प्यार ही करूँगा, नफरत तो कर नहीं सकता। आई थिंक हम कोई नहीं कर पाते, हम कहते हैं मगर नहीं कर पाते हैं, करने की ज़रूरत भी नहीं है। नफरत है नहीं मेरे में, है नहीं, हाँ, बिल्कुल। राइट। I'm unable to hate. सो साइकिल वाइकिल पैक करके, मतलब आधा घर पैक कर लिया, अपना पूरा बार ही उठा के ले गया मैं। आई रेंटेड अ ह्यूज SUV, वहाँ पे एक एयरबीएनबी में 2 महीने की बुकिंग कराई, हम पहुँच गए अल्मोड़ा। पहुँचते ही इश्क हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है, अल्मोड़ा है तो हिल स्टेशन, मगर वो कन्वेंशनल हिल स्टेशन से काफ़ी मुख्तलिफ है। इट्स वेरी डिफरेंट। इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है, काफ़ी होमली है। शिमला मनाली अब जो इतना ज़्यादा एक सैचुरेशन Right. पॉइंट आ गया वहाँ पे, अल्मोड़ा अभी भी Pristine in कोसों that. दूर है। छोटा सा शहर है, सबको जानते हैं, आप इजीली घुल मिल जाते हैं वहाँ लोगों के साथ। तो वहाँ हम 2 महीना रहे, एंड देन दिसंबर 2020 में हमने अपनी ज़िंदगी का पहला माउंटेन बाइकिंग ट्रिप सोलो अनसपोर्टेड किया, अल्मोड़ा से मुनस्यारी, एंड देन दूसरे बागेश्वर शामालीती होते हुए। इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस, मगर आपकी जान निकल जाती है, चढ़ाई इतनी ज़्यादा है। और साइकिल में सिर्फ साइकिलिस्ट ही जानते हैं Right. कि हमारी ज़िंदगी कैसी होती है सड़कों पे। ईजी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरा हुआ, एंड मेहनत बहुत लगती है। So आप जब ये ट्रैवल करते हैं तो there must be a spiritual angst also Yes. that the travel fulfills, otherwise you wouldn't do it. Indeed. So what is it? आप काफ़ी किताबों में पढ़ेंगे, काफ़ी लोग आपको ज्ञान बांटेंगे कि ट्रैवल इज़ द बिगेस्ट क्लासरूम और द ग्रेटेस्ट बुक टू रीड। It मैं engages उसको all your रोज जीता senses. हूँ, मैं रोज, Right. हर रोज। जो चीज़ आपको बहुत आम लगती है, इस तरीके से जब आप सफ़र करते हैं, और खासकर दोपहिए में साइकिल में, आप हर एक चीज़ पे आप गौर फरमाते हुए जाते हैं। किसी की छोटी सी बात भी आपको याद आ जाती है। रास्तों में ऐसे काफ़ी मुसाफिर, ट्रैवलर्स, या फिर उस इलाके के जो वाशिंदे हैं, रेजिडेंट्स, आप पे जो प्यार बरसाते हैं, आपसे ऐसे सवालात करते हैं, आपको किसी के घर में ऐसे ही ठहरा देते हैं, खाना ऑफर करते हैं। ये चीज़ें ना, ये आपको नॉर्मल जिंदगी में नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगा। उनके लिए आप एक क्यूरियोसिटी का विषय हैं, right? और आपके लिए वो एक बेनेवोलेंट सॉर्ट ऑफ अ फिलैंथ्रोपिस्ट, Yeah, ऐसे कुछ है। right. तो वो चीज़ें मर्ज होती Heart हैं। centered interactions. हाँ हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। So what is your most interesting incident or encounter from all your travels, if you had to identify? काफ़ी सारे। एक तो मुझे याद है, मेरा पहले दिन की राइड जो अल्मोड़ा से चौकोरी का था, करीब 120 किलोमीटर पहाड़ में, बहुत बड़ी बात है वो भी मेरे जैसे नौसिखिए MTB राइडर के लिए। तो हम जब
बस आखिरी 15 किलोमीटर रह गए थे और सूरज ढल चुका था। सूरज तो 40 किलोमीटर पहले ही ढल चुका था। तो बेरी नाग करके एक जगह है उस इलाके में, मुनस्यारी से पहले। गांव के छोटे बड़े सभी लोग 5-6 किलोमीटर मेरे साथ साथ आए गाड़ी में और बाइक में कि भैया आप आगे मत जाइए। वो पूरा इलाका लेपर्ड इन्फेस्टेड है। इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस टू बी ऑन योर ओन एट नाइट। Hmm. और वहाँ पे हादसे भी होते हैं। कोई बच्चे को मार के खा गया। मैन ईटर्स काफ़ी है वहाँ पे। Hmm. तो आई वाज लाइक कि आप सब ठीक कह रहे हैं शायद। और अंदर से था कि क्या ही होगा। अब पता है कि क्या होगा, तो अब हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, जरूरत भी नहीं करते हैं कि मेरा तो रिजॉर्ट बुकड है, मुझे तो जाना है आगे, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं चला गया। वहाँ पे मैं एक हेडलाइट पहनता हूँ अपने सर पे जो आगे रोशनी देती है। देती है। उसका बैटरी भी ख़त्म हो गया क्योंकि वो 5 घंटे से चल रही है, और कितना। हम्म। और वो लास्ट 2-3 किलोमीटर का फॉरेस्ट पैच था, वो मुझे क्रॉस करना क्रॉस था। करना। तो मुझे लगा कि, और मेरे ऐप में था कि 99 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स, ओके। लास्ट के 15-18 किलोमीटर बाकी रह गए थे। तो एक इनोवा जा रही थी फैमिली के साथ, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे। दे वर लाइक रियली सॉरी, आप देख सकते हैं पूरा फुल है, मगर हम एक काम कर सकते हैं, हम आपके पीछे पीछे फॉलो करेंगे जब तक ये फॉरेस्ट पैच ख़त्म नहीं होता, हम आपको हेडलाइट देंगे, आप जाते रहिए। जाते रहिए। तो आधा घंटा 40 मिनट जो भी है उन्होंने हमारी मदद की। देन हम वेस्ट कोस्ट जब कवर कर रहे थे, महाराष्ट्र टू कन्याकुमारी, काफ़ी बार एक शख्स हमें याद है, वो ऑटो चलाता है। 1 घंटा वो हमारे साथ He was चला। there. हाँ. उसने हमें ऑफ़र किया कि आप हमारे घर में रुकिए, हम आपको लंच कराते हैं, Hmm. आपके पास पैसे वैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने काफ़ी देर तक उसको डॉज किया, फिर उसने मुझे पूछा कि आप कहाँ रुकेंगे। मैंने कहा मुझे वो सामने वाले उस आइलैंड पे जाना है, मगर वहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने कि नहीं मैं वहीं पे रुका हूँ। ही वाज वेरी क्यूरियस टू नो दैट वेयर एम आई लिविंग। तो मैं बताना नहीं चाह रहा था उसको। उसने मुझे इतना कुछ ऑफ़र किया, तो ही वाज लाइक वेयर? आई वाज लाइक ताजमहल बार। ही वाज वेरी टेकन अबैक। Okay. ये ये ऐसे ऐसे ताजमहल में ताजमहल रहेगा। बार। हाँ. तो But anyway, life has, I think, really come full circle because you have seen the ups and downs of life, yes, and now you've come to a place where, in a way, through sustainable living, you want yes, to kind yes. of give back. Another very very heart-warming incident happened to me Egypt में, जहाँ पे कहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में कंजर्वेटिव नेचर के लोग हैं बहुत, एंड रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो आप जिससे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते, वहीं से आपको अगर वो जेस्चर मिले Hmm. तो लगता है कि अब भी दुनिया में सब कुछ ठीक है, बरकरार है, उम्मीद बाकी है, Hmm. उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक मोहतरमा से हमारी मुलाकात हुई सोहाग करके एक रेलवे स्टेशन पे। तो इजिप्ट में पुलिस रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। इजिप्ट में करीब 900 किलोमीटर Hmm. का जो सफ़र था हमारा साइकिल पे, Hmm. कांस्टेंट पुलिस एस्कॉर्ट था हमारे साथ पूरे 900 किलोमीटर। Why is that? तो इजिप्ट बहुत ज़्यादा एक पैरानोया में जीता है कि अगर कुछ भी गलत हो गया किसी टूरिस्ट के साथ, इजिप्ट इंटरनेशनल हेडलाइन में आ जाएगा। वो हमारे टूरिज्म सेक्टर के लिए मतलब बहुत ख़राब है। Okay. आई थिंक एक इजिप्ट का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का हिस्सा वो टूरिज्म पे ही निर्भर है पूरी Okay. तरह से। Okay. So if something goes wrong over there, the Westerners would stop coming. Although they won't, but they have some sort of a paranoia around So it. then what happened? So पुलिस ने मेरे मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट किए। सोहाग में जाके मुझे छोड़ दिया गया, only to pick me up after Later. 200 kilometers, और ज़्यादा restrictions के साथ। तो वो मोहतरमा अपनी छोटी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पे थी, and I was exhausted, I was irritated, and क्योंकि
मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि मुझे लोगों से मिलना है, मुझे कल्चर को Hmm. एक्सपीरियंस करना है, जहाँ पे पुलिस मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने मेरी बात सुनी एंड पता नहीं उनके अंदर से क्या एक इमोशन, आई कुड सी कि वो थोड़ा टेरी आइड हो गई, और वो उनको पता है, अब तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन जेस्चर ये है नमस्ते। Hmm. तो उन्होंने नमस्कार किया और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। Hmm. उस देश में इजिप्ट बहुत ज़्यादा शरिया इन्फ्लुएंस है, Hmm. ये एक नॉर्मल जेस्चर नहीं है। For a woman to embrace a man. Right. Yes. उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हैं, एंड वो मुझे गले लगा लिया, एंड शी वाज लाइक अगर आपके पास वक्त हो तो आप मेरे घर ज़रूर आइएगा। मैं अगले दिन गया उनके घर, उन्होंने मुझे रात का खाना खिलाया और पता चला कि वो शरिया की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। Wow. शी इज़ PhD इन शरिया। Wow. और Amazing. उन्होंने कहा कि बेटा थोड़ा अरबिक, मैं चलता फिरता अरबिक अब बोल लेता हूँ, मैं Right. समझ जाता हूँ, बोल भी हाँ, लेता हूँ, अपनी हाँ, बात समझा सकता हाँ. हूँ। तो हमने थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी अरबिक में बातचीत की, उनकी पूरी फैमिली से उन्होंने हमें मिलाया, कहा कि शरिया को एक्सप्लेनेशन जो करते हैं ना ये, वो सही नहीं है, Hmm. इट्स वेरी डीप, Hmm. हर चीज़ का लॉजिक है, मगर जो नॉर्मली समझाया जाता है वो है नहीं। अब हम तो पढ़ा सकते हैं, हम तालीम दे सकते हैं, अमल करना ना करना वो तो लोगों के ऊपर है। Hmm. Hmm. तो Hmm. वो एक बहुत ही एक हार्ट Heart-touching. फेल्ट, हाँ. हार्ट टचिंग एक जेस्चर Incident. था, हाँ. इंसिडेंट था। हाँ. बहुत लोगों ने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, रखा, हमने भी किया, उनको बिरयानी पका के खिलाई इजिप्ट में। So wow. So thank you, Indranil, for sharing, such exciting, moments from your life, and inspiring more than exciting, because you're obviously someone who is very much in touch with the essence of what it means to have a meaningful life. So I tried to. it was lovely chatting with you. Thank you very much. Thank you so much for inviting me. It was lovely talking to you and sharing my experiences. Thank you.